Hi, hello friends. Welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss regarding GATE 2021 examination. Okay. So the information brochure regarding this GATE 2021 examination which has been already out. Okay, and released. So you can visit the IIT Bombay website. So through that particular link you can see the information brochure. So the link I am going to be sharing in the description box. So you can also visit the total information brochure that how you are going to be apply for this particular examination. So there are most important question that why I am going to making this video, because in this year, in the 2021, the GATE are going to be taking some of the new changes in it. So there is a actually very big opportunity for the BSc final year students in this year. So that's why I am going to be creating this video. So how and what kind of the changes are going to be taken place in GATE 2021 examination, now we are going to be talk on that particular part. So now without wasting our time, we are going to be started with the session that what are the changes are going to be taken place into the GATE 2021 examination. So just take a look. Okay, now these are the actually major key points. I mean to say कि ये सारे चेंजेस गेट 2021 एग्जामिनेशन में होने वाले हैं. जैसे कि एग्जाम पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है. देन सिलेबस आर गोइंग टू बी रिवाइज. सो सम ऑफ द न्यू टर्म्स आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस इन योर सिलेबस also, and the eligibility criteria. So these are the basically three major points are going to be changed into the GATE 2021 examination. So that is why it is very important to understand first of all what is the exam pattern, that what is the revised syllabus, and what is the eligibility criteria to apply this examination. Okay, now just take a look. These are the now actually most important dates for GATE 2021 examination. So actually now you all people are aware about the COVID-19 situation. Okay, so because of this situation, to overcome from this particular drawback, this year GATE will be conducted the examination for 6 days. Like in the earlier, in the last year, the exam will be conducted only the 4 days, but this year GATE 2021 examination will be conducted total 6 days. तो मतलब पहले जैसे कैसे होता था कि आपके सैटरडे एंड संडे एग्जाम होता था, करेक्ट. तो इस साल आपका जो गेट का एग्जाम होगा वो फ्राइडे से स्टार्ट होगा. सो 2 वीक में आपका एग्जाम होने वाला है. पहले तो होगा आपका 5, 6 और 7 को, मतलब फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, एंड देन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. सो दिस इज हाउ योर एग्जाम विल कंडक्टेड फ्रॉम 5 to 14 फेब. तो 6 दिन में आपका इस साल एग्जाम होने वाला है. मतलब 5 फरवरी से लेकर के 14 फेब तक आपका एग्जाम इस साल कंडक्ट होगा. सो द मीन्स लुक इनटू इट द कोविड-19 सिचुएशन, दे डिसाइडेड टू कीप द एग्जामिनेशन longer in time so that you don't face any difficulty in it. And the timing of the particular these 6 days will be मॉर्निंग मीन्स फोरनून एंड द आफ्टरनून. तो ये तो आपको पता है कि एग्जाम जो होता है वो आपका 3 आवर्स का होता है. तो मॉर्निंग में आपका टाइम रहेगा 9 AM to 12 PM, एंड फिर आफ्टरनून में आपका पेपर होगा 3 to 6 PM. सो दिस इज हाउ 6 दिन के लिए इस बार आपका गेट 2021 का एग्जाम उन लोगों ने रखा है. अब बात करते हैं हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे गेट 2021 एग्जामिनेशन के, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ब्राउचर इस साल उन लोगों ने बहुत अर्ली अपलोड किया हुआ है. तो मतलब आप लोग प्रॉपरली सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशन प्रोटोकॉल फॉलो कर सके. तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो है यानी कि आप अप्लाई कर सकते हो इस एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट होगा 14 सितंबर को, मतलब मंडे. सो मंडे से आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो टिल 13 सितंबर. सो दीज आर एक्चुअली लास्ट डेट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म. तो आपको 14 तारीख से लेकर के 13 सितंबर 2020 तक ये फॉर्म फिल करना है. बट सपोज इज देयर एनी डिफिकल्टी एंड इज देयर एनी प्रॉब्लम दैट यू आर नॉट जस्ट सपोज टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड पीरियड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू बी देयर. तो वो आपका होगा 7 अक्टूबर. बट यहाँ पर एक चीज स्टूडेंट आप याद रखिए, आप अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेट फिल करते हो तो उसमें आपको यहाँ पे लेट फी पे करनी होगी. ठीक है, तो दीज आर द एक्चुअली ओनली द ड्रॉबैक. अदरवाइज यू कैन फिल ओनली द 14 टू इन बिटवीन 30 सितंबर यू कैन फिल. तो आपको ये जो लेट फी यहाँ पे लगेगा वो आपको फिल नहीं करना पड़ेगा. ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि मतलब मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर भी दिया 14 और 13 के बीच में, बट यू हैव टू चेंज द सेंटर, यू हैव टू चेंज द कैटेगरी, ओके, पेपर पैटर्न. सो इन दैट पर्टिकुलर द लास्ट डेट, ओके, फॉर चेंज ऑफ द कैटेगरी
एंड पेपर एंड एग्जामिनेशन सिटी। तो उसके लिए जो डेट दिया हुआ है वो है 13 नवंबर। तो टिल 13 नवंबर ओके आप लोग को अगर आपका सेंटर चेंज करना है, कैटेगरी चेंज करना है, कुछ प्रॉब्लम है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो आप टिल 13 नवंबर तक वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अब सबसे मेन जो बात है कि मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा है, तो एडमिट कार्ड कब मिलेगा? सो एडमिट कार्ड विल बी रिलीज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021 8 डेट। तो 8 जनवरी 2021 में you will get the admit card over here. So these are the actually most important dates for the GATE 2021 एग्जामिनेशन। तो आपको याद रखना है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको 14 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर 2020 के बीच में ही फिल करना है। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं कैटेगरी एग्जामिनेशन सिटी एंड सेंटर में, तो टिल 13 नवंबर तक आप कर सकते हो। और अगर फॉर्म भरने के लिए आपको अगर लेट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप लेट टिल 7 अक्टूबर 2020 तक उसको फिल कर सकते हो, बट यू हैव टू सबमिट देन लेट फी फॉर दिस। ओके, सो दीज आर द एक्चुअली मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स फॉर द योर गेट 2021 एग्जामिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली क्या मेजर चेंजेस हुए इस गेट 2021 एग्जामिनेशन में। सो नाउ जस्ट टेक अ लुक। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, विच इज एक्चुअली हार्ट ऑफ द योर एग्जाम। व्हाई आई एम सेइंग दैट? बिकॉज इन द लास्ट ईयर ओके वॉट एवर यू अपियर फॉर द पेपर और यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, वी आर गोइंग टू बी रिवाइज द प्रीवियस ईयर पेपर, राइट, एंड देन वी आर गोइंग टू बी अप्लाई द स्ट्रैटेजी कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करना है। बट अब इस साल आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ही चेंज हो चुका है, तो आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे चेंज करनी होगी एंड योर प्रिपरेशन मेथड ऑल्सो। ओके, सो पहले हम लोग बात करते हैं जैसे कि एग्जामिनेशन का मोड जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा, वो सबको पता है। ड्यूरेशन होगा एग्जाम का आपका 3 आवर्स के लिए। सेक्शन जो है एक्चुअली पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। फर्स्ट होता है आपका जीए का मतलब है जनरल एप्टीट्यूड, ओके, एंड देन प्लस होता है सेकंड सेशन जो होता है वो आपका होगा सिलेक्टेड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। मतलब आपका जो सेकंड टॉपिक होगा, मान लीजिए आप केमिस्ट्री का पेपर अपियर कर रहे हो गेट के लिए, तो यहाँ पे केमिस्ट्री होगा, यहाँ पर आपका होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अब सबसे जो मोस्ट देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर पेन से लिखा हुआ है। द रीजन इज दैट दीज आर द एक्चुअली मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इनटू द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। नाउ व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर दे गोइंग टू बी आस्क्ड? सो सिंस टिल लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते थे वो थे बेस्ड ऑन द एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड द एनईटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यही 2 टाइप के क्वेश्चन आते थे। बट दिस ईयर ओके दे आर गोइंग टू बी टेक सम ऑफ द चेंजेस। वो चेंजेस मतलब क्या? इस साल आपको MSQ मतलब मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन भी पूछे जाने वाले। अब MSQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, मान लीजिए आपके पास अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसका राइट आंसर जनरली MCQ में क्या होता है कि आउट ऑफ द 4 ऑप्शन ओनली द 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बट नाउ इन MSQ व्हाट विल बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन कि एक से ज्यादा जो आंसर होते वो राइट होने के चांसेस होते। सो देयर में बी 2 or 3 will be the right option, okay, but in that there will be the no negative marking over here। तो इसका मतलब क्या है MSQ में? मतलब मान लीजिए कि एक ऑप्शन आपको पूछा गया है जिसमें 2 ऑप्शंस आपके राइट हैं, ठीक है, और आपने सिर्फ एक ही ऑप्शन आप करेक्ट कर पेपर सबमिट करके आए हो, तो यू विल गेट कंप्लीटली लॉस योर मार्क्स। तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली याद रखना है कि अगर 3 राइट आंसर है, सो यू मस्ट हैव टू क्लिक 3 ऑप्शंस ओवर हियर। बट इफ यू आर गोइंग टू बी राइट ओनली द 2 ऑप्शंस राइट, तो यू विल कंप्लीटली लूज योर मार्क्स। तो यहाँ पे बहुत आपको प्रॉपरली टेक केयर करना है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट नाउ दिस ईयर यू हैव टू चेंज योर सम ऑफ द स्ट्रैटेजी एंड द प्रिपरेशन पार्ट, बिकॉज इन द MSQ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लॉक योर आंसर वेरी करेक्टली। अगर 2 ऑप्शन राइट है तो 2 ही लिखना है, अगर 3 ऑप्शंस राइट है तो आपको 3 ऑप्शंस पे ही क्लिक करना। आपने अगर 2 भी क्लिक किया, 1 नहीं किया, तो आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। MSQ आपको पता है और इसका मतलब एक ही ऑप्शन राइट होगा, और ये भी आपको टाइप पता है जो आपने लास्ट ईयर तक अप्लाई किया हुआ है। सो ये जो न्यू टर्म है इस साल आपको इंट्रोड्यूस किया है इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड में से टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं आपको, और सिलेक्टेड जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसमें से आपको 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते। तो टोटल जो एंड ऑफ द डे नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए वो होंगे आपके 65 क्वेश्चन। सो यू हैव टू अटेंड द 65 क्वेश्चन इन 180 मिनट्स। हाउ मेनी मिनट्स स्टूडेंट? 180 मिनट्स। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान योर एंटायर स्टडी, दैट इज यू शुड कीप इन माइंड। और जो मार्क्स जो अलॉटेड है
10 जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट उसके लिए जो मार्क्स है वो 15 मार्क्स है एंड 55 क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड सब्जेक्ट के उसके लिए 85 मार्क्स. सो दिस इज आवर टोटल जो आपके मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे आपके 100 मार्क्स का पेपर. Okay, and the one more thing that you should keep in mind, all the question that will be coming into the examination that will be only for the 1 and 2 marks. तो question जो रहेंगे आपके either वो 1 marks के लिए पूछा जाएगा और either 2 marks के लिए. So these are the actually complete pattern of examination that you have to remember. तो जो changes जो हुआ है ओके वो चेंजेस क्या है आपके एमएसक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन इस साल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे. तो वही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है और उसको दिमाग में रखते हुए आपको आपका अगला जो प्लान है वो आपको रेडी करना है. ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट चेंजेस की तरफ. नेक्स्ट चेंजेस किसमें किया हुआ है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में. ठीक है, अब प्रॉपरली पढ़ लीजिए. दीज आर द एक्चुअली हाईलाइटेड पॉइंट ऑफ द गेट 2021 एग्जामिनेशन. व्हाट विल बी द पॉइंट? Studying in the third or higher years of any undergraduate degree program or has already completed any government approved degree program in engineering, technology, architecture, science, commerce and arts. मतलब अब यहाँ पर क्या है, टिल लास्ट ईयर तक देयर विल बी द कंफ्यूजन इनटू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट कि बीटेक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं तो बीएससी के स्टूडेंट अप्लाई करेंगे या नहीं. तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे करेक्टली प्रॉपरली उन लोगों ने मेंशन किया था थर्ड और हायर ईयर्स एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम. इसका मतलब इस साल से आपके जो बीएससी में अगर कोई स्टूडेंट थे, फाइनल ईयर स्टूडेंट है बीएससी का, तो वो बच्चा भी यहाँ पर गेट 2021 एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकता है. मतलब चारों साल के बच्चे जो बीएससी फाइनल ईयर में है, जिसका बीएससी फाइनल ईयर का एग्जाम हो चुका है, जो एमएससी पार्ट 1 में है और जो बच्चा एमएससी पार्ट 2 में है, ठीक है, और जिसका एमएससी ऑलरेडी हो चुका है, तो सारे बच्चे अब इस साल गेट 2021 के लिए एप्लीकेबल है. तो अब यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंजेस इस साल अब कंपटीशन बढ़ने वाला है, ऐसे सबको लग रहा है. बट यू डोंट पैनिक स्टूडेंट, बिकॉज व्हाट विल हैपन इफ सपोज द बीएससी स्टूडेंट कैन अपियर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम बट स्टिल ओके, अगर उनको आगे ये जो मतलब अगर ये एग्जाम वो क्रैक भी करते हैं, मान लीजिए अगर गेट 2021 एग्जाम वो क्लियर भी कर लेते हैं, बट स्टिल दे हैव टू कंप्लीटेड देयर एमएससी, बिकॉज गेट जो 2021 का जो रिजल्ट होता है स्टूडेंट, वो आपका जो एप्लीकेबल होता है 3 इयर्स के लिए. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रख लीजिए कि आपका जो रिजल्ट होता है वो कितने साल के लिए आपका एप्लीकेबल होता है? 3 इयर्स के लिए एप्लीकेबल है. तो मान लीजिए अगर कोई बीएससी का बच्चा है, वो अगर एग्जाम क्लियर भी यहाँ पर कर लेता है, दैट इज वेरी एब्सोल्युटली स्टनिंग जॉब. वो अगर करता भी है तो उसको बाद में क्या करना पड़ेगा, 2 साल एमएससी करना है. तो उसके बाद वो मतलब मान लीजिए अगर कोई पीएससी एग्जाम के लिए वो देता है या फिर पीएचडी के लिए उसको जाना है, ठीक है, या फिर किसी ओएनजीसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, दे कैन अप्लाई. बट एमएससी के बच्चों के लिए या बट, तो अब जो आप ये जो बात सोच रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी पैनिक फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, सो डोंट पैनिक ओवर हियर. ओके, तो ऐसे कुछ कंपटीशन वगैरह नहीं है, तो वो बच्चे उनके हिसाब से ही जाएंगे, बिकॉज हर एक एग्जाम का, हर एक कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं, हर एक जॉब का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है. जैसे कि मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री स्टूडेंट क्या करते हैं, आफ्टर अप्लाइंग द गेट 2021 एग्जाम दे मूव टुवर्ड्स द ओएनजीसी. ठीक है, तो ओएनजीसी का यहाँ पर मैं बता रही हूँ, वन मोर ड्रॉबैक इज दैट ये जो रिजल्ट होता है आपका 3 साल के लिए एप्लीकेबल है. बट ओएनजीसी वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आप 2021 में एग्जाम दे रहे हो तो वो उसी साल का रिजल्ट कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो वो 22 या फिर 20 का रिजल्ट नहीं है करते. तो ओएनजीसी का खुद का एक क्राइटेरिया है. बट आप अगर मान लीजिए पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जाना चाहते हैं, सो यू कैन अप्लाई. तो ये रिजल्ट यहाँ पे आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा. तो ये सबसे बड़ी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अब बीएससी के बच्चों को लिए यहाँ पर अवेलेबल किया गया है इन द गेट 2021 एग्जामिनेशन. सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, नाउ यू कैन अप्लाई योर स्ट्रैटेजी, अप्लाई योर प्लान एंड जस्ट गो अहेड विद द गेट 2021 एग्जामिनेशन. ठीक है, अब लास्ट जो हम लोग सबसे जो मेजर बात करेंगे वो है आपका रिलेटेड टू सब्जेक्ट. तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलरली केमिस्ट्री टॉपिक के बारे में. अब इस साल जो न्यू चेंजेस जो हुआ है आपके गेट 2021 एग्जामिनेशन में, वो ये चेंजेस हुआ है कि टिल द लास्ट ईयर आप कोई भी एक ही पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे, राइट, मीन्स यू आर गोइंग टू बी अटेम्प्ट ओनली द 1 पेपर. बट फ्रॉम दिस नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दिस ईयर यू कैन अप्लाई अलॉन्ग विद द 1
अलॉन्ग विद द वन सब्जेक्ट यू कैन अप्लाई फॉर द अनदर सब्जेक्ट ऑल्सो, मतलब आप एक पेपर के साथ दूसरा पेपर भी यहाँ पे दे सकते हो। सो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, इंटरडिसिप्लिनरी जो एरियाज होता है टू एनहांस दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड, हियर दे आर गोइंग टू बी अप्लाई द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू द ऑल द स्टूडेंट। मतलब आप अगर एक टॉपिक के लिए अप्लाई करते हो तो आप दूसरे टॉपिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, सो दैट यू शुड नॉट मीन्स लाइक ड्रॉ इन वन पर्टिकुलर बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपके जो टेक्निक्स है, आपका जो नॉलेज है, उसको एनहांस कर सकते हो। तो अगर मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो आप, अगर आपका मेजर जो टॉपिक है केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अलावा अगर आपका कोई दूसरा पेपर जो अगर अटेम्प्ट करना है तो आप वो कर सकते हैं CH एंड एक्सेल। अब यहाँ पे कोड बहुत जरूरी है। आपने गलती से पे अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त CH अगर कर लिया, ठीक है, और CY नहीं किया, तो इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट केमिस्ट्री को CH कंसीडर कर सकते हैं कोड में। तो प्रॉपरली फॉर्म भरते वक्त याद रखिए स्टूडेंट, ठीक है। केमिस्ट्री का कोड है CY, CH फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, कीप इन माइंड केमिकल इंजीनियरिंग। एंड एक्सेल का मतलब है लाइफ साइंस। मतलब केमिस्ट्री के बच्चे इस साल अगर उनको कोई दूसरा पेपर देना है गेट का, तो आइदर वो अप्लाई कर सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए या फिर लाइफ साइंस के लिए। सो दीज आर द एक्चुअली न्यू टॉपिक यू कैन अप्लाई इन द गेट 2021। तो ये बहुत एक्चुअली बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू ऑल द स्टूडेंट टू अपियर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। बट आपको याद रखना है कोड यहाँ पर प्रॉपरली, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में। अब केमिस्ट्री जो आपका सिलेबस होता है उसमें भी इस साल बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो मतलब न्यू चेंजेस, न्यू टर्म्स आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस इन योर सिलेबस। तो बेसिकली जो केमिस्ट्री सिलेबस होता है वो 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है सेक्शन 1 फिजिकल केमिस्ट्री, सेक्शन 2 होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सेक्शन 3 होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सो दीज आर द एक्चुअली 3 सेक्शन अंडर विच यू आर गोइंग टू बी अप्लाई द केमिस्ट्री पेपर। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 1 की। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे कौन कौन से टॉपिक है, तो जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखोगे स्ट्रक्चर में एक्चुअली बेसिकली क्वांटम केमिस्ट्री का पार्ट आता है, ऑपरेटर, प्रिंसिपल्स, फर्स्ट 2D 3D डायमेंशनल, उसके एप्लीकेशंस एंड सो एंड। देन आपका आएगा ग्रुप थ्योरी यहाँ पर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, then equilibrium chapter, kinetics, surface and the interfaces. So in that actually till last year जो भी आपका सिलेबस था उसमें सारे कुछ न्यू टॉपिक ऐड किए हुए। तो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई एम जस्ट सपोज टू पुट द PDF ऑफ दिस सिलेबस। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वो PDF फाइल डाउनलोड कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कौन से नए टॉपिक इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2 विच इज योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट ईयर भी यही टॉपिक थी, इस साल भी यही टॉपिक है, बट कुछ फ्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए हुए। तो आप PDF फाइल एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो पहला टॉपिक है मेन ग्रुप एलिमेंट्स से क्वेश्चन आएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। सो ये बेसिकली आपका पीरियोडिक टेबल ही हो चुका। देन ऑर्गेनिक मेटालिक केमिस्ट्री, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक में। रेडियो एक्टिविटी, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। सॉलिड एंड देन इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, ये न्यू टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस साल आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन गेट में आते हैं। सो यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयर वेरी वेल। देन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एंड फोटोकेमिस्ट्री, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप जरूर PDF फाइल एक बार स्टडी कर लेना कि उसमें कौन से नए टॉपिक आए हैं, और उस हिसाब से ही इस साल आपके जो भी स्ट्रैटेजी है, आपका जो भी प्रिपरेशन मेथड है वो प्लान कर लेना। वैसे भी नाउ ऑन दिस दैट हाउ यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन में एक वीडियो बनाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून विथ अस सो यू कैन गेट एक्चुअल दैट हाउ यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ओके। सो दिस इज हाउ इन द गेट 2021 एग्जामिनेशन which is actually organized by in this year IIT बॉम्बे, ओके। तो उन्होंने ये इतने सारे चेंजेस किए हुए हैं विच इज एक्चुअली वेरी फैंटास्टिक चेंजेस, जिसका आपको बेनिफिट ही होने वाला है। सो डोंट पैनिक स्टूडेंट कि इसके आपको कुछ ड्रॉबैक होने वाले हैं, ठीक है। सो दैट यू शुड कीप इन माइंड, ओके। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून and keep studying, okay. So thank you so much student watching this video. If you really like this video, don't forget to subscribe us, okay. Thank you so much student.